Dear children, heartiest welcome in the English class. How are you? Hope that all of you are well and safe at your home. Dear children, today we will read chapter 6, that is Expert Detectives of your book Honeycomb. Dear children, as you know that I divided this chapter in two parts. In previous video, we completed the part 1, that is comprehension 1 of this chapter. We knew that how two children, that is Nishad and Maya, works as detectives to know about Mr. Nath. Today we will read the next part, that is comprehension 2 of this chapter. Dear children, the author of this chapter is Sharda Dwivedi. Dear children, these are the expected learning outcomes which will be achieved by us after reading this chapter. Let's continue. I wrote in large block letters, catching a crook. Expert detectives Nishad and Maya Pandit. By appointment to the whole world. मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, अपराधी को पकड़ना, कुशल जासूस निषाद और माया पंडित, विश्व भर के लिए नियोजित भेंट द्वारा. Then I began writing. तब मैंने लिखना शुरू किया. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. लगभग आधे घंटे के पश्चात मैं सप्तम की ओर मुड़ी, जो अपनी ठोडी को अपनी हथेलियों पर रखे अपने पेट के बल लेटा हास्य पत्रिका पढ़ रहा था. Want to hear what I have written? I asked. क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है? मैंने पूछा. He looked up questioningly. उसने प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. मैंने उन सब तथ्यों की सूची बना ली है जो हम श्रीमान नाथ के बारे में जानते हैं, जो हमें उन्हें फंसाने में मदद कर सकते हैं. I said, want to hear? मैंने कहा, क्या तुम सुनना चाहते हो? Seven nodded. सप्तम ने सिर हिलाया. Fact number 1, I read. तथ्य संख्या 1 मैंने पढ़ा. His name is Mr. Nath. उसका नाम श्रीमान नाथ है. We must discover his first name. हमें उसका पूरा नाम ढूंढना चाहिए. Do you think that's his real name? माया निषाद asked. क्या तुम सोचती हो कि यह उसका असली नाम है? माया निषाद ने पूछा. Probably not, I said. शायद नहीं, मैंने कहा. Most crooks have an alias. अधिकांश अपराधियों का एक उपनाम होता है. I added a big question mark after Nath. मैंने नाथ के बाद एक बड़ा प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया. फैक्ट नंबर 2, तथ्य संख्या 2, I read on. मैं पढ़ती गई. The tenants at Shankar house say he is mad, strange and unfriendly. शंकर के घर के किराएदार कहते हैं कि वह पागल, अजीब और रूखा है. नंबर 3, संख्या 3, He doesn't talk to anyone and is mannerless. वह किसी से बात नहीं करता और अशिष्ट है. But he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite. निषाद interrupted. लेकिन उसने हमसे बात की थी, माया, और माँ कहती है कि वह बहुत विनम्र है. निषाद ने बीच में टोका. He only talked to us because he had to, I said. उसने हमसे केवल इसलिए बात की क्योंकि उसे करनी पड़ी, मैंने कहा. And since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. और क्योंकि वह माँ के पास डॉक्टरी इलाज करवा रहा था, उसे विनम्र होना पड़ा. फैक्ट नंबर 4, तथ्य संख्या 4, He doesn't receive any letters. उसे कभी कोई पत्र प्राप्त नहीं होता. 7 nodded. सप्तम ने सिर हिलाया. नंबर 5, संख्या 5, He has been living in room number 10 of Shankar house for more than a year, I continued.
वह शंकर के घर के कमरा नंबर 10 में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहा है। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all the day। संख्या 6, वह काम नहीं करता और सारा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है। नंबर 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him। संख्या 7, शंकर के घर में रहने वाले बच्चे और कुछ बड़े भी उससे डरते हैं। नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled, fair, fat man who visits him on Sundays for lunch। संख्या 8, ऐनक वाले एक गोरे मोटे आदमी को छोड़कर जो रविवार भोजन के लिए उसके पास आता है और कोई मेहमान उसके पास नहीं आता। नंबर 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs। संख्या 9, उसके कमरे में भोजन और चाय रमेश द्वारा नीचे भोजनालय से ले जाए जाते हैं। He doesn't care what he eats, pay his bill immediately and tips well। वह अपने खाने पर ध्यान नहीं देता, अपने बिल तुरंत ही चुकाता है और अच्छा इनाम देता है। That ends my list। मेरी सूची यहाँ समाप्त होती है। Have I forgotten anything 7? क्या मैं कुछ भूल गई हूँ सप्तम? निषाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts। निषाद स्पष्टतः मेरे तथ्यों की सूची पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहा था। All he could say was, poor man, Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends। वह केवल इतना कह सका, बेचारा आदमी माया, मित्रों के अभाव में वह स्वयं को कितना अकेला महसूस करता होगा। How can a crook have friends, idiot? I almost shouted। एक अपराधी के मित्र कैसे हो सकते हैं मूर्ख? मैंने लगभग चिल्लाकर कहा। At least he has one friend, the one who meets him on Sundays, said निषाद। कम से कम उसका एक मित्र है जो उसे रविवार को मिलने आता है, निषाद ने कहा। A brilliant thought occurred to me just then। तभी मुझे एक शानदार विचार आया। That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said। वह व्यक्ति अवश्य ही अपराध में श्रीमान नाथ का साथी होगा, मैंने कहा। Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses। शायद लूट का सारा सामान उसके पास है और वह प्रायः अपने साथी श्रीमान नाथ को उसका कुछ हिस्सा खर्चों के लिए देने आता है। That's it। यही बात है। I am sure I am right। मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हूँ। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said निषाद angrily। यदि तुम उसे अपराधी मानने की जिद पर अड़ी रहोगी तो मेरे विचार में मेरा तुम्हारे साथ कुछ चर्चा करना बेकार है, माया, निषाद ने गुस्से से कहा। He can't be such a bad man if he gives रमेश such generous tips। यदि वह रमेश को इतनी उदारता से इनाम देता है, वह इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said। रमेश शायद उसके भूतकाल के बारे में कुछ जानता है, इसलिए श्री नाथ उसे चुप रहने के लिए रिश्वत देते होंगे, मैंने कहा। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest। निषाद ने अपनी बाहें छाती पर कसकर बांधे मेरी ओर घूरा। I was beginning to get fed up with him। मैं उससे तंग आने लगी थी। How can we make any progress with our investigations if you take that attitude 7? I asked। हम अपनी पूछताछ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं यदि तुम्हारा यही व्यवहार रहा, सप्तम, मैंने पूछा। I will cooperate only if you give up
दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रुक, सेड 7। मैं तभी सहयोग करूंगा यदि तुम उसे एक भागा हुआ अपराधी होने के बारे में विचार त्याग दो, सप्तम ने कहा। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे वास्तव में गुस्सा दिलाती हो। आई ऑलमोस्ट हेट हिम, मैं उससे लगभग भिड़ गई। आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड, उफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड। मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, तुम मूर्ख बच्चे, मैं चिल्लाई, तुम मुझे पागल बनाते हो। What is the point all of these inquiries if he is not a crook? इस सारी पूछताछ का क्या फायदा यदि वह अपराधी नहीं है। If you think he is a nobody, what is the idea of bothering about him? Please tell me. यदि तुम सोचते हो कि वह अपराधी नहीं है तो उसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है, कृपया मुझे बताओ। निषाद लुक्ड थॉटफुल, निषाद विचार मगन दिखाई दिया। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन एंड वाई ही इज सो लॉनली। मैं यह पता लगाना चाहूंगा कि वह इतना दुबला पतला और अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मैं जानना चाहता हूं कि उसके मित्र क्यों नहीं है और वह अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम। समझने की कोशिश करो सप्तम, मैंने उसे बताया। इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यदि वह 1 साल से शंकर के घर में रह रहा है और उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया है तो दाल में कुछ काला है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. स्पष्ट है कि वह डरता है कि कोई उसे पहचान लेगा और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। Maybe no one's tried to make friends with him, निषाद protested. शायद किसी ने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश नहीं की, निषाद ने विरोध किया। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. कोई ऐसा क्यों करेगा? तुमने देखा है कि वह कितना बुरा आदमी है, मैंने कहा। I don't care, said निषाद stubbornly. मुझे कोई परवाह नहीं, निषाद ने हठ से कहा। I like him and I am going to try and be his friend. मैं उसे पसंद करता हूं और मैं कोशिश करके उसका मित्र बनूंगा। फ्रेंड्स विद ए क्रुक, हा, यू आर क्रेजी 7, आई सेड। एक अपराधी का मित्र, हा, तुम पागल हो सप्तम, मैंने कहा। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, पुलिस वाले उसके साथ तुम्हें भी जेल ले जाएंगे। डू यू वांट दैट टू हैपन, यू इडियट, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो, मूर्ख। निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. निषाद ने मेरी और केवल घूर कर देखा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। My theories seem to have made no impression on him at all. मेरे तर्कों का उस पर कोई प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा था। So dear children, this is all about the chapter Expert Detectives. I hope you understand this chapter. Dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this chapter. Thank you. Be happy and safe.